Yes, sir. So this homework question, what is the answer? See, when we drop a ball, initial velocity is 0. How much is the distance traveled in time t? S is equals to ut plus half gt square. So downward direction we are taking positive, so g is positive. Now this u is 0, so this term will cancel out. 0, it will become 0. And g you can take as 10. So s t is equals to half into 10 t square. So what will be the distance travel? So 2 times 1, 5 times 2. So that's 5t square. So s is equals to 5t square. Yes. सर इतना मैंने भी कर दिया था लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि t की वैल्यू क्या पुट करूं. Okay, good. That's good. Fine. Agree. Okay. We are just trying to understand this concept. Okay. So if you have tried, then you will understand it in a better way. Okay. Now again, velocity at any point t. Velocity at any point t. See, vt. It has two meanings, students. First meaning, velocity is a function of t. This is the first meaning. What does this further means? Velocity is a function of t. What does this mean? That velocity is a function of t. It means velocity depends on t. Value of v depends on t. This is the first meaning of this. How do we read it, students? V of t. V of t. Okay. This is not v multiplied t. Okay. This is v of t, like f of x, p of x, q of x. What is the second meaning? This is v at time t. Okay, so it has two meanings. First, v depends on t, and second, v at time t. Is this clear? तो उसी तरीके से अगर s of t है तो इसके भी दो मीनिंग हो जाएंगे. बताओ मुझे क्या क्या मीनिंग होंगे इसके. This is function of t. S at time t. Yes. और second, S at time t. s at time t. तो v is equals to u plus at. So a is equals to g here, and at downward direction we have taken positive, so it's a is equals to plus g. So vt is equals to gt, right? So u equals to 0 and a equals to plus. So students, we have these two values, means these two you can say the formulas of s and t. Now let us make a table. T, v and s. So when time t is equals to 0, v is equals to 0, s is equals to 0, right? When time t is equals to 1 second, what is velocity? Gt means 10 into t. What is velocity? 10 into t. What is s? 5 t square. So what is v? At 1 second. How much is the distance traveled in 1 second?
5. Okay. Now t equals to 2. How much is the 20. velocity? 20 meter per second. Very good. How much is the distance traveled? 20. 20. Okay, 20 meters is the distance traveled in 2 seconds. Now, what is the velocity after 3 seconds? 30. 30. How much is the distance traveled in 45. 40? 45. 45. 4. How much is the velocity after 4 seconds, at the end of 4 seconds? 40. How much is the distance 80. traveled in 80. 4 for the 16, 16 5 the 80. Is this clear or not clear? Yes, sir. Now if I ask you, how much is the distance traveled in that particular interval? Okay, distance traveled in 1 second. ओके, तो यहां 0 से 1 सेकंड में आपने कितना किया? 5. यहां कितना किया 1 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल? 2 माइनस 1, 20 माइनस 5 कितना आएगा? 15. यहां कितना ट्रेवल किया आपने 1 सेकंड में? 25. यहां 1 सेकंड में कितना किया आपने? 35. ठीक है, तो यू कैन सी कि if the velocity is increasing, यहाँ velocity 10 है, यहाँ 20 या 30 या 40, तो obviously हर सेकंड में आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ या ना? Yes, sir. तो लॉजिक समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? तो ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए, समझे? तो इसकी रेशो क्या आई, याद है? 1:3 डिस्टेंस ट्रेवल इन 1, 5:7. याद आ गया कुछ? Yes, sir. अभी टेबल याद हो गई? हाँ, उसके बाद Yes, sir. 5 के लिए भी आएगा. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये टेबल वैसे ही याद जाती है. इसको लिख लो सीधा 5t² और इसको लिख लो 10t. अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है शॉर्टकट कि टोटल फॉल कितना है स्टूडेंट्स? टोटल फॉल इन लास्ट 2 सेकेंड्स. 2 सेकंड में, लास्ट के 2 सेकंड में 40 है फॉल. तो मुझे बताओगे किस कौन से 2 को ऐड करके 40 मिलेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल 1 सेकंड है, तो 2 सेकंड किन 2 को ऐड करके 40 बन रहा है? बेटा इनमें से किस 2 को ऐड करके 40 बनेगा? टेल मी. 35 plus 15. अरे कंसेक्यूटिव है ना दोनों. लास्ट के 2 सेकंड कौन से हो सकते हैं? क्या वो 3 और 4 हो सकते हैं, या 2 और 3 हो सकते हैं, या 1 और 2 हो सकते हैं? फर्स्ट सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, अगले सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर्स, अगले 5 सेकंड्स में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर. तो वो कह रहा है कि भाई लास्ट के 2 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अगर आप इससे ज्यादा आगे जाते चले जाएंगे तो आपका आंसर बढ़ता चला जाएगा. तो आपने इन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सेकंड और थर्ड सेकंड में. 40. ये सेकंड था और ये था थर्ड सेकंड. तो यही तो क्वेश्चन आपका कि लास्ट के 2 सेकंड में आपने 40 मीटर ट्रेवल किया है. समझ में आई कुछ बात? Yes, sir. तो इसका मतलब टोटल 3 सेकंड ही हुए हैं गिरते हुए. तो फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया आपने? अरे 5. 5 meter. यहां आपने किया टोटल 40, 15 प्लस 25, 40 मीटर. तो इससे पहले कितना ट्रेवल कर चुके हो आप? 5 मीटर. टोटल कितना हो गया?
टोटल कितना हुआ? 5 मीटर। कितना टोटल? 45 मीटर। आई बात समझ में या नहीं आई? सर एक बार दोबारा। आपने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 15 मीटर्स। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 25। तो इन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 40 मीटर। तो इसका मतलब बॉल को कहां से गिराया था, कितनी हाइट से गिराया था? कि इन तो बोलो कितने हाइट से गिराया था, बताओ। आ गई बात समझ? ऑप्शन 2 ये तो था शॉर्टकट कि एक आप इसको आपको मतलब बिल्कुल आपको ये चीज याद हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। दो जितने क्वेश्चंस करेंगे ये तो विद इन 10 सेकंड्स आप इसका आंसर लिख सकते थे इस क्वेश्चन का। 10 सेकंड के अंदर विदाउट कैलकुलेशंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं कि आपको पेन टच करने की जरूरत ना पड़े, आंसर निकाल दें आप। समझे? बिना पेन टच किए। तो धीरे धीरे विजुअलाइजेशन आपका इंक्रीज होगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मेरे से सॉल्यूशन सुनने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया जितने भी वीडियोस हैं हर वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सर इसको सॉल्व करेंगे, कर लो सॉल्व। nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला क्या होता है? u प्लस, बेटा याद हो जाना चाहिए अब तक, आज लिखा था ये फार्मूला हमने। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स। n सेकंड्स में कितना, क्या फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स का? t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल ओनली इन nth सेकंड। सिर्फ nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? इतना nth सेकंड। यानी कि आप n-1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया n में किया, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि Sn माइनस Sn-1, तो आपका आ जाएगा Snth। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। और यहां से फिर हमने ये फार्मूला निकाला था। आप कैलकुलेट करके ये फार्मूला खुद ड्राइव कर सकते हैं। ओके, चलो तो हमें लास्ट 2 सेकंड्स का दे रखा है ना, यानी कि Sn प्लस Sn-1 इसका दे रखा है ना, कितना? 40 मीटर। यही दिया ना आपको। तो Sn-1 सेकंड में कितना आएगा? u प्लस 1/2a इंटू 2n-1 माइनस 1। यस भाई, n की जगह n-1 रख दो ना, यहां भी और यहां भी। तो क्या बना ये Sn-1? डेट इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 2n माइनस। इज दिस क्लियर? इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? u प्लस u 2u, हाफ a कॉमन है तो अंदर क्या बचा? 2n प्लस 2n 4n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये आ गया लास्ट 2 सेकंड्स में आपका डिस्टेंस, डेट इज 40 मीटर्स। u क्या है? 0, तो u तो खत्म हो जाएगा। a इज इक्वल टू प्लस 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 कॉमन ले लें यहां से, तो क्या आ गया? n-1 इज इक्वल टू 40। 10 for the 40 and this 40, so divide both sides with 40, it will cancel out। अब ये 2 कहां चला जाएगा? दूसरी तरफ। तो n-1
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2, आप ऐसा कर सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2 एंड डिवाइड विद 40. ओके, तो व्हाट यू विल गेट, ये 2 इधर से तो 2 खत्म हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड. यानी कि टोटल जो बॉडी है वो 3 सेकंड से नीचे गिर रही है, 3 सेकंड हो गए उसे, टोटल फॉल जो है 3 सेकंड है उसका. आई कुछ बात समझ? यस सर. तो हमें निकालना था टोटल, तो टोटल के लिए फॉर्मूला क्या, एस एन, वही अपना फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर. तो यानी कि इसको आप टी बोल लो, एन बोल लो, एक ही बात है. तो एस एन बोल लो या टी बोल लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए क्या आपका जी. तो u तो क्या है, 0 आपका, रेस्ट में थी बॉडी, तो आ गया हाफ जी टी स्क्वायर. तो हाफ इंटू 10 जो अभी फॉर्मूला लिखा है, ये सीधा डायरेक्ट लिखना शुरू करो, 5t स्क्वायर. बार बार, अब ये बहुत बार लिख लिया हमने डायरेक्ट फार्मूला. s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 80 10t. ओके, तो क्या आया यहां से, 5 इंटू टी कितना है, 3 निकाला ना आपने, तो कितना आया, 9 5 द 45 मीटर आ गया ना, 45 मीटर. तो दोनों तरीके समझ आए. तो अब आपको इस सब्जेक्ट से जुड़ जाना है, दोस्ती कर लेनी है, तब जाकर दिमाग चलेगा, फटाफट आंसर्स निकलेंगे. ओके, आ गया क्वेश्चन समझ में स्टूडेंट्स? यस सर. दोनों तरीके से बात बन गई. जितने ज्यादा तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे, उतना ही ज्यादा कंसेप्ट को समझेंगे. ओके, ओके सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आप नोट कर लिया? वेट सर. करो, नोट करो. अगर कुछ छूट जाता है तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फार्मूला शीट बनाओ अपनी, एक सारे फार्मूले एक शीट पे लिखना शुरू करो, की पॉइंट्स, फार्मूलाज, डेफिनेशंस, ये सब. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. ए बॉल ऑफ मास 0.20 kg falls freely from a certain height and rebound elastically with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड. ये जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स. तो बेसिक कंसेप्ट को टेस्ट करने की कोशिश की गई है. दिस इज आल्सो अनदर बेसिक कंसेप्ट. इसको ध्यान समझेंगे, इस कंसेप्ट को. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो वी हैव ए बॉल, ये आपकी बॉल है और ये आपका ग्राउंड है. इस बॉल ने हिट किया ग्राउंड को. ओके, और हिट करने के बाद फिर इसने क्या किया, रीबाउंड, फिर वापस ऊपर. ओके, बात समझ आई? यस सर. अब आप एक बात का ध्यान रखो. सबसे पहले तो जब आप मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी. ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्मॉल चेंज ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, स्मॉल चेंज. आगे बात समझ में? यस सर. दोनों इक्वल हैं, तो आपने स्मॉल चेंज इधर लिया तो उधर भी स्मॉल चेंज हो गया. अब स्मॉल चेंज मीन्स दिस इज डेल्टा. ये किसका सिंबल है, डेल्टा. डेल्टा मीन्स चेंज इन. क्या इसका मतलब, चेंज इन. चेंज इन. ओके,
सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो चीज चेंज नहीं होती वो बाहर आ जाती है। ये रूल है, ये रूल आप सीख लो, आसान सी बात है। तो मास बाहर आ जाएगा, सिर्फ चेंज किस में बच जाएगा, वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा का मतलब, चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। Initial. तो क्या हो गया, एम ऑफ, अब यहां भी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है मान लो v2 और इनिशियल वेलोसिटी मान लो v1 या u, एक ही बात है। या आप लिख लो, देखो कितने तरीके से इसी बात को लिख सकते हो, आप ऐसा लिख लो, या फिर आप vf माइनस vi लिख लो, या p2 माइनस p1 इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1, ऐसा भी लिख सकते हो। बात आगे समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, आप इसमें किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे पहले तो ये बताओ मुझे, आपकी मर्जी है। लेकिन मोमेंटम में ध्यान रखो कि जो फाइनल आपका, आपकी जो फाइनल डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लो, तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को पॉजिटिव ले सकते हो। तो इसमें जो हम फाइनली जिस तरफ इन हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको पॉजिटिव ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो Okay, sir. Okay, sir. चलो, तो आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, कोई बात नहीं, चलो आपकी बात रख लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, इसने हिट किया ग्राउंड को विद वेलोसिटी v। कैसे हिट किया, विद वेलोसिटी v। तो ये जो रीबाउंड है ये क्या है, इलास्टिक रीबाउंड है। क्या है, Elastic rebound. इलास्टिक रीबाउंड में जिस वेलोसिटी से हिट किया है उसी वेलोसिटी लूज नहीं करेगी बॉल अपनी, इलास्टिक कोल्यूशन में। हमेशा ध्यान रखेंगे, इलास्टिक कोल्यूशन, ये कोल्यूशन है सरफेस का और बॉल का। तो इलास्टिक कोल्यूशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओपोजिट। यस, इसकी डायरेक्शन थी प्लस वी डाउनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Upward. Upward. माइनस वी। क्लियर हो गई बात। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है, ओपोजिट। Opposite. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना आया आपका, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, माइनस v, हाँ या ना, Yes, sir. माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी, Plus V. वेरी गुड, बिल्कुल। तो क्या आया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस v हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, दिस इज क्या हो गया, v माइनस v माइनस 2v, तो माइनस 2mv। आ गई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ये नेगेटिव आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन। समझ गए। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2mv। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। Clear. इस फार्मूले को याद कर लो बेटा, चेंज इन मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन इज 2mv, यानी कि मोमेंटम को डबल कर दो बस। ये मोमेंटम था ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 2mv. 2mv. हाँ डबल कर दो इसको। क्यों डबल कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी इधर पॉजिटिव थी उधर नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव को नेगेटिव से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, 2mv तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इन द डायरेक्शन ऑफ, यस,
final velocity in the direction of Final. आ गई बात समझ में सबको अच्छे से? Yes, sir. तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा फिर आपका? अरे चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? 2 इंटू एम कितना है? 0.20। तो एम के सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड कितनी थी जिससे हिट किया इसने? स्पीड 40 meter per second. 40 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहां भी हम वही कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहां जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो v क्या है? स्पीड। ओके ओके सर। हाँ, जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो कितना आंसर आया स्टूडेंट्स इसका? यहां से डेसिमल हट जाएगा, 0 खत्म। आंसर इज 16 kg मीटर पर। मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। अब मैंने आपको बताया कि व्हाट यू कैन डू इज कि आप अगर फाइनल डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते, यानी कि फाइनल डायरेक्शन थी, अगर इसको आप पॉजिटिव मान लेते तो ये इनिशियल क्या आ जाता? -v। तो चेंज इन मोमेंटम आपका आ जाता मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू m इनटू फाइनल वेलोसिटी क्या है? +v। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो -v। तो क्या आ गया दिस? हाँ, तो 2mv। लेकिन यहां प्लस है, ये मत भूलो। तो प्लस फिर वही बात आ गई। तो चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है ना, 2mv जो पहले था। यस सर। और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? वही तो डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो आपको इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो भी आपने ले ली, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो सारे वेक्टर्स को आप उसी तरीके से लिखेंगे। तो आप समझ गए कि वेक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो साइन आएंगे वो आपकी डायरेक्शन बताएंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यहां जो आपका मोमेंटम आया उसका मैग्नीट्यूड तो 2mv है, और लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है यहां पर? इन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया अभी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन that we are going to do is, you have a graph which shows the position as a function of time. Okay, so position is a function of time. How you are going to write it? Position is x and it's a function of time, so x of t. This is how you will write x of t. Position is a function of time for two trains A and B running on parallel tracks. So here the trains are running on parallel tracks means same direction. What is the meaning of parallel tracks? It means they are moving in same direction. For a time greater than t equals to 0, which of the following statement is true? कौन सा ग्राफ है? पोजिशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होगा? चेंज इन y एक्सिस मतलब चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम। क्या आया? चेंज पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड। स्पीड। स्पीड आ गई। पोजिशन की बात हो रही है तो इट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देन इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो बात कर रहा है एट टाइम टी बी बोथ। तो ये आपको क्या बता रहा है? ये स्लोप क्या है आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? पोजिशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, दोनों में ही वो क्या बताएगा आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी। चलो, सो एट टाइम टी बी बोथ ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्लोप। तो क्या दोनों का स्लोप सेम है इस पॉइंट पर? नो सर।
बी का स्लोप कितना है ट्रेन बी का? 0। तो देखो वो तो रेस्ट पर आ गई है। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसकी। Yes, sir. स्लोप इज 0, वेलोसिटी इज 0। और ए का स्लोप कितना है? ये आप देख रहे हो, ए का तो स्लोप ही है। तो इट मींस दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, ओके सर। बोथ ट्रेन्स स्पीड अप ऑल द टाइम। क्या वो पूरे टाइम स्पीड अप होती रही? क्या उनका एक्सेलरेशन होता रहा? ये स्लो, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं दिस इज वेलोसिटी। तो जो ए ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन बताना मुझे कितना है? ए ट्रेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? इसका स्लोप कांस्टेंट है? सेम स्लोप है हर जगह, हाँ या ना? यस सर। जब स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम है। स्लोप क्या है? वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी सेम हो गई नहीं हो गई? Yes, sir. अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? Constant. बेटे अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ए ट्रेन का? No. 0। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो स्पीड अप कर ही नहीं रही। तो ट्रेन ए इज नॉट स्पीडिंग अप। अब ट्रेन बी की बात करो जिसका ये ग्राफ है। यहां स्लोप इतना है इसका, आगे स्लोप इतना, फिर स्लोप इतना, फिर स्लोप इतना, और फिर स्लोप ये। तो ये स्पीड अप हो रहा है, ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बताओ। स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाँ बेटा, ये एंगल थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाँ, डिक्रीज। स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। Decrease. तो इट इज स्पीडिंग डाउन, नॉट स्पीड अप। ओके, तो स्पीड अप तो किसी भी केस में नहीं हो रहा। ए केस में तो स्पीड कांस्टेंट है, और बी केस में क्या हो रहा है? इट इज स्पीडिंग डाउन। हाँ या ना? यस सर। तो यहां स्लोप इतना था और यहां स्लोप इतना, तो आप देख लो कि एंगल में कितना चेंज डिक्रीज हो गया। बोथ ट्रेन्स में हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम अर्लियर देन टीबी। यहां कभी ना कभी ऐसा टाइम रहा है टीबी से पहले कि इनकी वेलोसिटी सेम हो गई। क्या ऐसा हुआ होगा? दोनों की वेलोसिटी क्या थी? 0। 0 थी या नहीं थी? इसका स्लोप ज्यादा है ना? तो इसका मतलब यहां तक, उसके बाद यहां तक, इस पॉइंट टी तक ए का स्लोप ज्यादा था, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा थी। और सॉरी, ये बी है ना, बी की वेलोसिटी क्या थी? ज्यादा। और ए की वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट है वो, लेकिन उससे कम थी क्योंकि उसका स्लोप कम था। लेकिन यहां देखो दोनों का स्लोप सेम हो गया नहीं हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? यस सर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का स्लोप सेम हो गया, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? सेम। उसके बाद ए की तो उतनी ही रही, लेकिन बी की घटनी शुरू हो गई, बी का स्लोप घटना शुरू हो गया। आ गई बात समझ में? यस सर। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, ग्राफ इंडिकेट्स बोथ ट्रेन्स हैव सेम एक्सेलरेशन। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बेटा? No, sir. ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0. 0। वेरी गुड, ठीक है। और तो इस तरीके से ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A car is moving with constant speed of 70 km per hour. Which of the following statement is correct? The acceleration of car is definitely 0.
द कार हैज एन एक्सेलरेशन ओनली इफ इट इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। अगर कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? Yes, sir. और एक्सेलरेशन कैसी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यस, Yes, sir. इट इज टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है? mv square by r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। और बेटा मास तो तब आएगा ना जब व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर, दैट इज m into a, यस। अब आएगा mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स which is also acting towards the center, yes or no? Yes, yes, sir. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाय r। तो v कितना था आपका? 70। r कितना है? रेडियस ऑफ द सर्कल, मास m। तो मास तभी आएगा जब आप फोर्स की बात करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलो बताओ, कार हैज एन एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ। ओनली वर्ड इतना अप्रोप्रिएट नहीं है यहां पर, ठीक है? ओनली नहीं होता तो और भी अच्छा होता, तो ये स्टेटमेंट और भी करेक्ट हो जाती। चलो, लेकिन ओनली है तब भी ठीक है, तब भी बिल्कुल ठीक है। द कार हैज एन एक्सेलरेशन ओनली इफ इट इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ, यानी कि यहां से उसने डायरेक्शन चेंज किया। एक्सेलरेशन तभी होगा क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, हाँ या ना? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। Yes, sir. तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कांस्टेंट स्पीड में डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि देयर विल बी अ स्मॉल कर्व, राइट? तो इसलिए एक्सेलरेशन तभी होगा जब कर्व पाथ होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन देखते हैं। द कार हैव एन एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? अरे बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड एंड डायरेक्शन। क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या? अरे No, sir. कांस्टेंट स्पीड है बेटे, स्पीड चेंज नहीं हो रही, फिक्स है। डायरेक्शन भी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, डायरेक्शन भी क्या कर दिया आपने? फिक्स। दोनों चीज फिक्स कर दी ना, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? Zero. आई कुछ बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड में इसने लिखा कार में हैव एन एक्सेलरेशन। नहीं, कार एक्सेलरेट नहीं कर सकती अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। द कार मे नॉट हैव एन एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है फिर भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या ये सही बात है? नो सर। ये सेकंड का ही नेगेटिव पॉइंट है ना। चलो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन, ये तो इजी क्वेश्चन था बेटा। ए पर्सन मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए सर्टेन टाइम इफ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ये टोटल डिस्टेंस है आपका x, ओके? और टोटल टाइम लिया उसने मान लो t। 2/3 ऑफ द डिस्टेंस यानी कि 2/3 ऑफ x इज कवर्ड इन 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। पहले 1/3 लेंगे। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका 1/3x is covered in 2/3 of time, and the rest 2/3 of the distance is covered in 1/3 of the time। और ये स्पीड आपकी v1 and this is v2।
2। तो बताओ v1 बाय v2 क्या होगा? तो v1 किसके इक्वल? आपका 1/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है v1, तो 1/3x अपॉन 2/3t। तो 3 से तो ये क्या हो गया 1/3x इंटू ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2t/3 था ना, तो 3/2t। तो 3 से 3 कैंसिल, आप डायरेक्ट भी यहां कैंसिल कर सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताई ये बात। ओके, तो ये क्या हो गया आपका x/2t, ये आ गया v1। v2 क्या होगा बेटा? v2 विल बी इक्वल्स टू 2/3x अपॉन 2/3 और 1/3t। कितना आ जाएगा 2/3x इंटू 3/t, 3 से 3 कैंसिल, 2x/t। तो कितना आ गया v1/v2? 1/4. यस, x/2t इंटू डिवीजन करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा t/2x। तो कितना आ गया x कैंसिल, t से t कैंसिल, तो आ गया 1/2 मल्टीप्लाई टू 4। ओके, डन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward with velocity v, okay, such that it raises for t seconds. What is the distance traversed by the ball during the last 1 second of the ascent? आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो टोटल कितना टाइम लगा उसे? t सेकंड्स। कितना? तो आपसे 3 seconds. तो पूछ रहा आपसे जो लास्ट 1 सेकंड है उसमें आपने कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। सो वही आ गया यहां पर भी SN, nth सेकंड, लास्ट सेकंड मान लो। तो SN इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ, अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, तो प्लस g आएगा हाफ GT²। यस और नो? Yes sir. अब इसमें u कितना है आपका? व्हाट इज u? अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो g क्या आएगा, प्लस या माइनस? हाँ करते रहा करो बस बिना सोचे समझे। मैंने बताया कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे, मोशन डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली और वेलोसिटी दे रखी है कितनी v से थ्रो किया इसको, तो g तो डाउनवर्ड है, तो g क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो SN इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT²। ये फॉर्मूला सही है या गलत है? ये किसका फार्मूला है? अगर यहां ब्रैकेट में t होता तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड्स का फार्मूला है बेटा ये। SN का फार्मूला क्या होता है? u प्लस, अरे कितनी बार किया ना आज, यस सर। लास्ट 1 सेकंड का निकालना है ना आपको, तो अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। Yes sir. तो ST कितना हो जाएगा? u क्या है? u किसके इक्वल है? v के, माइनस हाफ a किसके इक्वल है? g के, और यहां क्या आ जाएगा? n क्या है? t के। आगे बात समझ में? यस सर। n इज इक्वल टू t, u इज इक्वल टू v, a इज इक्वल टू माइनस g। ये पुट कर दिया इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला में। आई कुछ बात समझ? यस सर। आंसर में Yes, बेटा sir. आपको जो आपका आंसर है वो इससे कहीं मैच कर रहा है। ये देखो ये v है और ये क्या है? vt। ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो v के साथ तो t आ सकता है क्या? नो सर।
तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब जो बाकी ऑप्शन बच गए उनमें वी है ही नहीं। है क्या वी बाकी ऑप्शंस में? नो सर। इसका मतलब आपको v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ gt। तो चलो फार्मूले पे आ जाओ। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, पता है ना? Yes, sir. v कितना है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी? 0। और u किसके इक्वल है? V के. तो इसलिए आप इसको बेशक कैपिटल v लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। ये कैपिटल v फाइनल वेलोसिटी, ये फार्मूले है। तो u हो गया v के, और a किसके इक्वल है? G के. माइनस g, राइट। तो v किसके इक्वल हो गया? v इज इक्वल टू जी टी, टी कैपिटल टी है ना, तो v किसके इक्वल हो गया? GT. अब ये वैल्यू पुट कर दो फिर यहां पर। तो बेटा क्या है आपके पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड, टीएथ सेकंड इज इक्वल्स टू जी टी माइनस, इसको ओपन कर दो अंदर, हाफ जी इंटू टू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ जी। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया ये? प्लस जी टी माइनस जी टी प्लस जी बाई 2। ओके, और प्लस जी टी से माइनस जी टी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? जी बाई 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Third option. तो लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन को कैसे सोचना है ये देखो। डन? यस सर। वीडियोस देख लेना, दोबारा नोट्स बना लेना अपने प्रॉपर, कुछ छूट रहा हो तो, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किस में चेंज करना है इसको? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। हमेशा कैसे चेंज करेंगे? यहां देखो, इसको बना लो। दिस इज योर ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो दिस वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इन सेकेंड। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा आपका? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस की यूनिट्स यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो चलिए अब इसका स्लोप बनाएंगे हम नीचे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक स्लोप इसका क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? Yes, sir. अगर v इंक्रीज हो रहा है तो t भी इंक्रीज हो रहा है ना, बोथ आर इंक्रीजिंग। तो बोथ आर इंक्रीजिंग, तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. साइकिल चलाएंगे लेफ्ट टू राइट तो कहां जाएगी? अपवर्ड। स्लोप इज पॉजिटिव। सो स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है? बोथ v and t are increasing. Is this clear? तो पॉजिटिव स्लोप, तो इनमें से किसका पॉजिटिव स्लोप है? कांस्टेंट है जो इन फिगर्स आप देख रहे हैं। यहां तो ये स्लोप को चेंज कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहां भी स्लोप को चेंज कर रहा है, ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि स्लोप तो क्या है? कांस्टेंट है। दिस थीटा, दिस स्लोप इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यानी कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहां से यहां कांस्टेंट, यहां से यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। उसके बाद क्या हुआ? अब स्लोप क्या हो गया? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? तो स्लोप 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो इनमें से कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है? First. फर्स्ट में एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया। अब उसके बाद बताओ, v तो डिक्रीज कर रहा है और t क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज v इज डिक्रीजिंग बट v इज डिक्रीजिंग एज t इज इंक्रीजिंग। तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो स्लोप नेगेटिव। यहां से साइकिल चलाएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर जाएंगे नीचे?
तो स्लोप इज नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो 2 से तो नेक्स्ट 2 से 3 सेकंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव। कहां पर है एक्सेलरेशन नेगेटिव, First. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो यहां से यहां ऐसे ऐसे आप ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन हो गई 0, तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या हो गई, नेगेटिव। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलो, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, तो फिगर देखो, t इज इक्वल टू 0, बॉल यहां है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, t इज इक्वल टू दूसरे सेकंड में, सेकंड, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ है। तो सबसे तो पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, पोजीशन, तो दिस इज वेलोसिटी। सो द स्लोप इज टेलिंग यू द वेलोसिटी। तो बताओ मुझे, पहले सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवलिंग इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, Increase. तीसरे सेकंड में कम, फोर्थ में डिस्टेंस और भी कम, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, Decrease. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। कौन से ग्राफ में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, 4. फोर्थ में। ये स्लोप कैसे बताते हो बेटा, स्लोप को आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाओ, कितना एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। थीटा सेम है या नहीं हर जगह, हाँ? Sir. तो फिर स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है, एक ही तो ढाल है, यहां से यहां तक ढाल बदला कहां है, एक ही तो स्लाइड है, हाँ? स्लोप इज कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. फिर तो पोजीशन जो तो यहां तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है आपका, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, इज दिस क्लियर? एंड यू आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। किसमें, अगर ये होता तो ये जो बॉल्स थी ये इक्वी डिस्टेंस रखी होती, सेम डिस्टेंस पे, अगर बॉल सेम डिस्टेंस पे रखी होती आपकी, तो ये ग्राफ होता आपका आंसर। ये भी डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, इसमें भी फर्स्ट सेकंड, अगले सेकंड में भी और अगले सेकंड। तो स्लोप इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन यहां तो बेटा डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना ट्रेवल हर सेकंड के साथ। इज दिस क्लियर? यस सर। Sir. तो इसमें बताओ, इसमें स्लोप क्या हो रहा है आपका, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। तो इसमें स्लोप देखना क्या हो रहा है, पहले ये स्लोप था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, Change. हाँ क्या हो रहा है इसमें स्लोप, फिर ये हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो रहा है इसके अंदर, तो बेटा पहले स्लोप आपका ये था, फिर आपका ये हुआ, फिर आपका ये हुआ, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज। यहां स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां स्लोप क्या हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग इन बोथ द केसेस। ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि यहां एक्स और टी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर टी तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो इसलिए नेगेटिव स्लोप विच इज, सो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप, यहां पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, लेकिन हमें चाहिए इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये आपका डिक्रीजिंग स्लोप, एज एज टाइम मूव कर रहा है, पोजिशन जो है वो, यू आर कमिंग नियर टू द ओरिजिन। देखो एक्स ओरिजिन, आप ओरिजिन के पास आ गए ना, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज कर रहा है। इज दिस क्लियर?
तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Sir. चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। पेशेंस रखो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, बार बार वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके Thank you, sir. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.